Welcome back to my channel, and in this video we are going to cover the chapter 3 class 11 political theory name equality. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो को इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिव करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. टॉप 1% of the YouTube videos, especially in terms of the educational channel, get such a wonderful response in their initial videos. I got that, and thank you very much for all of this. Your feedback is works like a boost for me. I will definitely going to put more such contents for you, where we focus on the smart study, cover each chapters in very short interval of time. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर 3 इक्वलिटी. वी ऑल नो दैट, ठीक है. अगर इक्वलिटी के बारे में अगर हमें समझना है तो हम ये जान रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट है ना, एंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ differences whatever exists in the society. So human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race, nationality. We should not differentiate between the people on the basis of these factors. This NCERT clearly mentions that equality means treating everyone equal. Do not discriminate on the basis of race, color, caste, gender, religion, reason, etc. So the question arises in our mind now, from where this term equality comes? What is the source? So we all know that from reading the history that this term, ये जो equality का term आया किधर से? तो French Revolution से आया. From where this comes from the French Revolution, in together with the other words like liberty, equality, and fraternity. So if the question asks what is the source of this term equality, so it is French Revolution. In the next topic, that is 3.2, what is equality? NCERT basically focuses on the difference between equality and identical. Note one thing, guys, that equality doesn't mean treating people identical. I mean to say that identical treatment of the people doesn't mean equality is what NCERT trying to say that. Let's understand with the example. अगर बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देयर मस्ट बी डिफरेंट बुक फॉर द पर्सन हु आर गुड इन विजन एंड फॉर द पर्सन हु इज. अगर हम दोनों को आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट करें तो अगर हम लोग को बुक देना हो तो सबको हम लोग टेक्स्ट बुक देंगे, रिटन टेक्स्ट बुक देंगे. तो फिर वो जो ब्लाइंड पर्सन वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए तो हमें ऑडियो बुक देना होगा ना. फॉर एग्जांपल अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए एक अलग पाथ नहीं बनाएंगे और सब एक ही पाथ पे चलेंगे, तो वेयर द पीपल हु यूज व्हील चेयर गोज. अगर वाइस वर्सा में सोचो तो अगर सबको बोले कि नहीं आप सब अगर इक्वलिटी से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आप सब व्हील चेयर से ही चलिएगा, आप सब ऑडियो बुक से ही पढ़िएगा, देन दिस विल क्रिएट illusion, guys. And that is why NCERT trying to say that equality and identical both are different terms. Do not mismatch with them. That equality is different thing, identical is different thing. And in one sentence, in one line, equality doesn't mean identical treatment of everyone. Moreover, there is need for different treatment so that separation of work exists in the society, division of works exists in the society, and society works in a more fair and profitable manner. It is required. So here it is written equality of opportunity. NCERT also wants to try convey you message that equality doesn't only means that eliminating all kind of differences. It also means giving everyone the equal opportunity regardless of the caste, color, region, gender, religion, etc. Equal opportunity to vote, equal representation, equal basic minimum facilities like house, food, clothing, etc. Then what is the difference between the natural and social inequalities? The inequalities which is from the birth, since birth by the nature is known as the natural inequalities, but the inequalities which is derived from the society, like for example caste discrimination, color discrimination on the basis of skin color like in the Africa, and also on the basis of region, religion, etc. These all forms of the inequalities are social inequalities. NCERT is clearly mentioned it is generally assumed that natural differences cannot be altered. मतलब कि जो नेचुरल डिफरेंसेस है उसको तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते, जनरली के टर्म्स में दिया. यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड, तो इस स्टेटमेंट को गलत मान के आना, रॉन्ग करना. क्यों? क्योंकि इसने जनरली मेंशन किया. और अगर ठीक तरीके से सोचे भी तो बिकॉज इन मॉडर्न टाइम बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये जो नेचुरल इनइक्वलिटीज है उसको भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है. NCERT ने मेंशन किया है कि स्टीफन हॉकिंग का जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से व्हील चेयर एंड ऑल दैट, उस नेचुरल इनइक्वलिटीज को भी अल्टर किया गया है. तो ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी अल्टर, उसको चेंज नहीं किया जा सकते. तो इट इज दैट इज व्हाई NCERT मेंशन जनरली एंड इन द मॉडर्न टाइम्स इट कैन बी अल्टर. ओके. And other is the inequalities in the society. I've already talked about the caste discrimination on the basis of color, region, religion, etc. बट देयर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट दैट लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इनइक्वलिटीज़ बहुत पहले से चली आ रही है उसको नेचुरल इनइक्वलिटीज़ मान लेते हैं. जैसे कि वोमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, मान ही लेते कि अच्छा वोमेन तो नेचुरली वो तो नेचुरल इनइक्वलिटीज़ है, उसने हमें चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत टाइम से चलते आ रहा है. तो ऐसा मान लिया गया है कि ये तो नेचुरल इनइक्वलिटी. बट फेमिनिज्म सपोर्ट्स that it is not something which cannot be altered. It can be altered. We will read ahead in this chapter regarding the concept of feminism. But for now, just think that natural inequality is the inequality that is from the birth, and social inequalities is the inequality that is derived from the society. So what is the modern benchmark? Modern benchmark, there are two types of differences. That is individual differences, that is basically talking about the natural inequalities, and again there is a family terms like social derived inequalities. So the need of the hour and the concern of the for treating people equally is only regarding the latter, that is the social inequalities. हमको social inequalities को ठीक कर.
अब आगे एनसीईआरटी ने 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी का बात किया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ था, है ना। इसको टाइप्स बोलना, 2 टाइप्स, जैसे नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ है। तो टाइप्स देखो, टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी भी देख सकते हैं, बहुत सारे तरह के आ सकते हैं। बट अगेन अब इसको टाइप्स बोलेंगे। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस के। 3 डायमेंशन है एंड दे आर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वन बाई वन बहुत आसानी से इन सबको समझते हैं। एंड बिलीव मी, ये आसान है यहाँ पे इसको समझना। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब एनसीईआरटी और जितना लिखा है, इट ऑल अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल सिटीजनशिप, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। सो पॉलिटिकल इक्वलिटी इज नथिंग ऑल अबाउट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सो बट इतना ना, इस लाइन का ये मतलब है कि नेसेसरी, इतना जो है नेसेसरी है बट नॉट इनफ। देयरफॉर वी नीड सेकेंड एंड थर्ड डायमेंशन, दैट इज सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी टॉक्स अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, guarantee certain minimum conditions. So if a question asks which dimension of equality talks about the minimum conditions, food, clothing, life, healthcare, shelter, etc., which dimension of equality? It is social equality. Tell me, which equality talks about the equal representation? It is political equality, which talks about the equal. Economic equality is focuses on the access. It's majorly focus on the reducing the gap between the rich and poor. Rich और poor के बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करने का फोकस है किसका, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी वाले टाइप। अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड जिसको यूज़ किया है जो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंट्रेंस्ड। अगर मतलब कोई भी डायमेंशन, पॉलिटिकल आ जाए, सोशल आ जाए, है ना, इकोनॉमिक आ जाए, नेचुरल इनइक्वालिटी आ जाए, तो इन सब के बारे में तो तुम लोग लिख लोगे। बट अगर आएगा व्हाट इज इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी, फिर इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी क्या है, वैसे इनइक्वालिटी जिसको बहुत टाइम से टच नहीं किया गया, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है ना। जैसे कि पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में तो सिर्फ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पर ध्यान दिया गया ना। अब उस टाइम में देखा जाए तो कौन सी इनइक्वालिटी इंट्रेंस थी, तो भैया सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंट्रेंस थी। लेकिन अब ये भी जो है डायमेंशन में काउंट हो गया, तो डेफिनेटली इट इज नॉट डेंजरस। तो डेंजरस क्या है, इंट्रेंस इक्वालिटी क्या है, अभी के टाइम के अगर हिसाब से देखिए तो कौन सी इनइक्वालिटी जो इंट्रेंस है, आई मीन टू से कौन सी इनइक्वालिटी है जो अनटच्ड है, तो भैया कौन सा, देखो फेमिनिस्ट, तो जेंडर इनइक्वालिटी अभी के टाइम में इंट्रेंस्ड माना जाएगा। पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ये सब कैसी है, इंट्रेंस्ड है, डेंजरस है, अनटच्ड है। अब कर लेते हैं बात इसके बारे में जो एनसीईआरटी मेंशन किया है। फेमिनिज्म क्या है, पैट्रियार्की क्या है, तो देखो फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, तो फेमिनिज्म सबसे पहले तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वुमेन, बहुत लोगों का कंसेप्ट है फेमिनिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेन होंगे, ऐसा नहीं। फेमिनिज्म मेन और वुमेन दोनों हो सकते हैं। So feminism are those men and women who believe that many of the inequality we see in society between men and women are neither natural nor necessary, can be altered। तो जो भी इनइक्वालिटीज अगर मेन और वुमेन के बीच में देख रहा है कि अच्छा मेन को ज़्यादा पोजीशन दे देना, मेन इज कंसिडर टू बी मोर पावरफुल एंड मेन इज कंसिडर टू बी मोर कैपेबल, ऑल्दो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इज नाउ बिकम्स क्लियर इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी। बट आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा सोचा जाता है, तो उसको लेकर के फेमिनिज्म ने बहुत क्लियरली सपोर्ट किया है कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है जिसको हम लोग अल्टर नहीं किया जा सकते, जिसको हम लोग अल्टर का मतलब जिसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ये तो सोशल इनइक्वालिटी है, लोगों ने बना रखा है। मैंने बताया ना, तो ऐसी इनइक्वालिटी जो बहुत टाइम से चलते आया है, या इंट्रेंस्ड इक्वालिटी कह लो, तो उस इनइक्वालिटी को ऐसा मान लिया चाहिए तो नेचुरल इनइक्वालिटी, इसको तो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। एनसीईआरटी ने मेंशन किया था ना कि 2 है, एक तो इंडिविजुअल है और एक सोसाइटल है ना, फैमिली वाला है। तो उसने बोला था कि ये जो है फ्रॉम बर्थ है, इसको हमें कंसर्न नहीं है, हमें ठीक किसको करना है, हमें इसको ठीक करना है। तो लोगों ने क्या बोल दिया कि फेमिनिज्म वाला है ना, ये इनइक्वालिटी तो नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसको तो अल्टर करने की जरूरत ही नहीं। तो उसको लेकर के फेमिनिज्म में सपोर्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द थिंग, दिस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड दिस कैन बी अल्टर्ड। पैट्रियार्की हम लोग जानते हैं, सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन वुमेन एंड गिव्स मेन पावर ओवर वुमेन। अच्छा, फेमिनिज्म में एक और बात कही है, वो है सेक्स वर्सेस जेंडर। उन्होंने कहा है कि ये जो सेक्स टर्म है ना, इट इज़ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड ये जो है किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं पैदा करते। इट इज़ जस्ट अबाउट द बायोलॉजिकल डिफरेंस दैट वुमेन कैन गिव बर्थ टू द बेबीज। दिस इज द डिफरेंस विच इज talking regarding the sex and this is the natural type, but it is not any kind of inequality is created by the word gender, और ये जो word gender ये सोसाइटी ने लाया है और यही जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब आगे है मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। तो मार्क्सिज्म गिवन, दिस थ्योरी इज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। इनका मानना ये था कि सोसाइटी में जितने भी तरह के डिफरेंसेस हैं ना, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन हैंड्स ऑफ द फ्यू। तो जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों, जैसे ऑयल लैंड प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है, और जब वेल्थ गया तो उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर आ गया। उन्हें क्या कहना है कि ट्रैकल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी वी नीड टू गो बियॉन्ड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू इंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ। ये थी कार्ल मार्क्स की। बट लिबरल्स क्या सोचते हैं, लिबरल्स का ये मानना है कि अगर सोसाइटी में हम इक्वल कंपटीशन ला रहे, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, ये नहीं कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो तो गिव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इफ देयर इज इक्वल कंपटीशन, फेयर एंड कंडीशन, देन वी कैन इस्टेब्लिश द जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो सिंपल सा है लिबरल और मार्क्स के बीच में डिफरेंस। मार्क्स बोलते हैं कि इनइक्वालिटी का जो मेन जड़ है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, और उनका कहना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बट लिबरल्स का ये कहना है कि ठीक इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे, तो हमें इक्वल कंपटीशन लेना चाहिए, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे फॉर सिलेक्टिंग एडमिशन। मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, वो है फ्री एंड फेयर कंपटीशन।
अब सोशलिज्म को समझते हैं। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म कहते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का बात है। उन्होंने बोला कि सिर्फ वेल्थ जो लोगों के हाथ में वही एक तरह का, उन्होंने सिर्फ एक ही तरह की इनइक्वालिटी की बात की। सोशलिज्म में भी सिर्फ एक ही तरह की, वही कोई बाकी इनइक्वालिटीज़ कहाँ हैं? इतने सारे इनइक्वालिटी पड़ते हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने सोशलिज्म कंसेप्ट देते हुए 7 और नए तरीके के इनइक्वालिटी का ध्यान देना। गाइज यहाँ पे 5 लिखा है, बट एक्चुअली में 5 नहीं है, सप्त क्रांति 7 है, तो कंफ्यूज मत। राम मनोहर लोहिया ने 5 दिया था, बट बाद में और ऐड किया था। राम मनोहर लोहिया ने 7 बताया, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनइक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी है बिटवीन मेन एंड वोमेन, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, colonial rule, economic inequality. These are the 5 and then new added that is against the just in private life. That राम मनोहर लोहिया जो राइट टू प्राइवेसी का बात सबसे पहले किए थे, उसके बाद वो जो है नॉन वायलेंस के इसके सॉरी आर्म्स एंड वेपन्स के अगेंस्ट, यानी कि फेवर ऑफ सत्याग्रह थे। तो ये 7 तरह के इनइक्वालिटी लाया गया इनके द्वारा, तो राम मनोहर लोहिया का इन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। And then NCERT mentioned that how we can end inequality and bring equality and promote equality in the society. That is establishing formal equality, ending the formal system of inequality and privileges. Formal system of inequality means traditional customary, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अब स्ट्रिक्ट हो गई है कि भैया किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल करती है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इससे पहले भी बता दें, इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीट, यानी कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है सबको। इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे इस वाले में, ये इस स्टोरी के थ्रू। अगर इस स्टोरी को तो अगर हमें सिलेक्ट करना हो, सबको बोलेंगे चलो ये पेड़ चढ़ो, तो पेड़ चढ़ने में ये तो बहुत तेज़ी से चढ़ जाएगा, बट बाकियों का क्या? और इसका तो सोचो। दैट इज़ वाई इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब सॉरी आइडेंटिकल ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें। इक्वलिटी कैसे प्रमोट करना है? थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स। And last concept of this chapter, that is affirmative action. Affirmative action means positive discrimination to correct the effect of the past inequalities. जो भी past में inequalities की है, जैसे ऐसे समझ, पहले के टाइम में जिन कास्ट के साथ मैं यहाँ पे कुछ डिबेट नहीं चाहता, जिन कास्ट के साथ इनइक्वालिटी स्ट्रीट हुआ उनको एज ए फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, उसी को कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? तो उनको स्कॉलरशिप्स दे करके, हॉस्टल्स दे करके, टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ द पास्ट इनइक्वालिटीज़, जो उनके साथ पास्ट में इनइक्वालिटी हुई है उसको ठीक। हाँ, बट इस पर डिबेट होते रहता है, जैसे क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन, कोटा, ये सब जो एक्चुअली में तुम तो इक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ हो, और अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो एक तरह से तुम खुद ही कास्ट और इस रेस्टल प्रेजुडिसेस को बढ़ावा दे रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आप तो अब इसके बाद अब तुम लोग खुद से एक बार अगर चैप्टर को पढ़ो तो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा, और ना भी पढ़ो तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया उस लाइन को देख लो। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।